السلام علیکم۔ ہمارے چینل ISM چھتر TV کے ہوسٹ سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے۔ آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام نبوت کے درجے پر فائز تھے۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بن لمک بن متشلق بن حضرت ادریس بن بدبل معلا بن انوش بن کتان بن شیث بن حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ نے خصاصی طویل عمر پائی اور رشتہ دار مخلوق خدا کو ہدایت کی طرح بلاتے رہے۔ آپ پھر نبوت کے بعد 950 برس اپنی قوم میں رہے اور طوفان کے بعد آپ 250 برس حیات رہے۔ یوں اگر آپ کی 40 برس کی عمر نبوت ملی ہو تو آپ کی عمر 1250 برس بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس قوم کی تبلیغ فرمائی اسے بنو واس کہا جاتا ہے۔ آپ کی عمر 40 برس تھی تو آپ کو مبعوث فرمایا گیا اور آپ نے 950 برس تک اپنی اس قوم کو گناہوں سے باز رہنے اور نیک کاموں کی طرف رغبت دلائی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی قوم آپ کی باتوں پر کان دھرتی اور گناہوں سے اور غلط کاموں سے باز آ جاتی، مگر جیسے جیسے آپ انہیں سمجھاتے رہے وہ ویسے گناہوں میں ڈوبتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شفقت یہ تھی کہ لوگوں کو سیدھی راہ پر چلانا چاہتے تھے جن پر چل کے انہیں نجات کی امید ہو سکتی تھی۔ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دے، مگر آپ کی قوم آپ کا شکر گزار ہونے کی بجائے آپ کو شدید ترین مخالف ہو گئے۔ اب ایسا ہونے لگا کہ وہ لوگ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور آپ اگر کچھ چیز فرماتے تو وہ اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ آپ کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ ہی سکے۔ حالانکہ آپ تو ان لوگوں کو دوزخ کے دردناک عذاب سے بچانا چاہتے تھے۔ اس پورے دور نبوت میں آپ کی قوم آپ سے دور ہونے کی کوشش کرتی رہی اور ایمان سے بھی دور ہوتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات تبلیغ فرمائی، مگر ان کی قوم نے آپ کی کسی بات کو مان لینا تو دور کی بات ہے سننا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ نے لوگوں کو فردن بھی سمجھایا اور مخالف دین کی تکلیف فرمائی، مگر ان لوگوں پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ بڑی بدبختی تھی کہ ان لوگوں کی کہ انہیں جو نبی دوزخ کی آگ سے بچانا چاہ رہا تھا اسی سے نفرت کرنے لگے اور اپنی کفریہ عقائد پر بیکار بن رہے ہیں۔ ایک طویل عرصہ تبلیغ کا گزارنے کے بعد چند خواتین حضرت آپ پر ایمان لائی۔ ان میں آپ کے 3 صاحبزادے سام، حام اور یافس شامل ہیں۔ آپ کے صاحبزادوں کے 3 ازواج اور ایک آپ کی زوجہ کے علاوہ محض 70 خواتین حضرت ایسے تھے جنہیں آپ کی ذات حق کے قبول کر لیا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں طوفان کے وقت پر کشتی پر سوار ہونا نصیب ہوا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سمیت کل 70 لوگ کشتی پر سوار تھے۔ ان میں مرد و عورتوں کی تعداد یکساں تھی۔ قوم کے ایمان نہ لانے کی وجوہات۔ اللہ کریم کا قرآن شریف کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے کہ تو آپ ایک قوم کے سردار جو کافر تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے جیسے ہی آدمی سمجھتے ہیں، یعنی ان کا خیال تھا کہ نبی کسی دوسری قوم سے ہوگا اور وہ اسی بات پر یقین ہی رکھتے تھے کہ ان ہی میں سے کوئی شخص اس درجے پر فائز ہو جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی اتارتا تو فرشتہ رہتا ہے، جیسے کہ اللہ کریم کا اس آیت سورۃ المومنون کا آیت نمبر 24 میں ہے کہ تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر ہم جیسا ہی آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور اللہ تعالیٰ کا چاہتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے اپنے اباء و اجداد سے ہرگز نہ سنا۔ یعنی وہ لوگ اسی جگہ پر گامزن رہنا چاہتے تھے جس پر ان کے باپ دادا چلتے رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر نبی ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ پھر ان کے خیال میں قوم کی رہنمائی کے لیے اعلیٰ اور بڑے خاندان کی تعلیم اتنا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان کی قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں نے اعتراض کیا کہ کریمہ اور ہم تو نہیں دیکھتے تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینیوں نے سرسری نظر سے۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ سے کہا آپ پر کوئی بڑا شخص ایمان تو نہیں لایا اور اس کے بعد معاشرے کے غریب لوگوں نے آپ پر ایمان لانا قبول کیا ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اور وہ بھی اگر سوچے بچار کر لیتے تو
हरगिज़ ईमान न लाते, यानी इनकी समझने की सलाहियत ही नहीं थी। चौंके ईमान लाने वाले गरीब लोग थे, चनाचा वो कहते हम तो सरदार हैं। ईमान लाकर इनके जैसे भला हम किस तरह हो सकते हैं। या इनका बदतरीन तकब्बुर था जिसने इन्हें सीधी रास्ते से दूर कर दिया और दोस्तों के नजदीक कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ये फरमाते रहे, ए मेरी कौम के लोगों, तकब्बुर से बाज आ जाओ, इसमें तुम लोगों की कामयाबी है, और शुक्र करो कि तुम ही में से तुम्हारा नबी मबूस हुए हैं। अल्लाह ताला के अज़ाब से डरो, जब ये अज़ाब नाज़िल होता है तो गुनाहगारों किसी तरह भी बच नहीं सकते। एक मरतबा आपकी कौम के बड़े बड़े सरदारों ने आपको पैगाम भेजा कि अपने पास से गरीब लोगों को उठा दें, तो हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं। तो आपने जवाब दिया, जिसको अल्लाह करीम ने कुरान करीम की सूरह हूद की आयत नंबर 29 में यूँ फरमाया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो इनको अपने हाथ से निकालने वाला नहीं हूँ। जो ईमान ले आए हैं बेशक अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, अलबत्ता मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम जाहिल लोग हो। जब इनके रिश्तेदारों ने आपको पैगाम भिजवाया होगा आपकी गर्दन ने हाथ खस्ता हाल मफलूक हाल लोग मौजूद रहते हैं, भला हमारा कि इन लोगों में अगर आप इन्हें वहाँ से दूर कर दे तो हम आपके पास आ सकते हैं। जिसके जवाब में आपने फरमाया, मेरे नजदीक बैठने वाले लोग अक्ल और दानी से माला माल है, जबकि तुम लोग ही जाहिल हो जो ईमान की हकीकत को भी अब तक तस्लीम नहीं कर सके। कौम पर वबाल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फैज़ नबूवत बरस अदा करते रहे, मगर इनकी अनथक मेहनत बावजूद इनकी कौम ने इनकी इत्तबा नहीं की और बस तो इनकी तकज़ीब करने की रविश बरकरार रखी। ये चंद बरसों की बात नहीं बल्कि सदियों का मुहित है। सदियों तक तबलीग के बाद भी जब आपकी कौम ने इत्तबा ना की तो अल्लाह ताला के अहकाम को ना माना तो अल्लाह ताला ने इन लोगों पर इब्तिदाई तौर पर हल्का अज़ाब नाज़िल फरमाया। इब्तिदाई तौर पर आपकी कौम पर 11 साल का अज़ाब नाज़िल किया गया और फिर गोया फाक़िया कशी की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी वजह से पानी के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो गए और खेती बाड़ी भी बिल्कुल ख़त्म होकर आ गई। ये सूरत हाल किसी भी माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है, क्योंकि अगर बारिश न बरसे तो बीमारी भी बढ़ जाती है, जबकि कोई भी फसल उग नहीं सकती और खेत खलिहान और बागात मैदान हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा अज़ाब यह नाज़िल हुआ, इस कौम के ऊपर बांझ होना शुरू हो गई, किसी के भी यहाँ औलाद पैदा ना हो रही थी। ये भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होती, क्योंकि किसी माशरे की खूबसूरती से इसके बच्चों से ही होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हमदली। जब इन मुश्किलात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुब्तला है तो बावजूद इनका तकलीफ से वो लोग भागे भागे आपके पास आए और लगी इल्तिजा करने। आपने इनकी मुश्किलात को कम करने और ताला के अज़ाब से बचने के लिए कुछ तरीके तलक़ीन फरमाए। इसका जिक्र अल्लाह की कुरान करीम में सूरह नूह की आयत 10-13 में यूँ बयान फरमाया है। तर्जुमा, तो मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तो बड़ा ही माफ़ फरमाने वाला है। जब तुम माफ़ी मांग लोगे तो तुम पर शराबे का मीना बरस आएगा और माल दौलत और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बगात पैदा फरमाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तो तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह ताला के से इज्जत हासिल करने की उम्मीद ही नहीं करते हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों के मसाइल से उनको मशवरा किया, तुम लोग कुछ भी ना करो, मैं अल्लाह ताला के हज़ूर इस्तग़फ़ार कर लो तो अल्लाह ताला तुम पर मेहरबानी फरमाएगा। फिर जब इनसे अज़ाब टल गया तो उन्होंने अपनी साहब का रविश को फिर से अपना लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कौम का बुरा सलूक। अल्लाह ताला के बरगज़िदा बंदे नबी रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ इनकी कौम का सलूक किसी भी तरह अच्छा ना था। वजह इसकी ये थी कि आप इनकी आक़िबत की फिक्र क्या करते और इन्हीं गुनाहों से बचने की तलकीन फरमाया करते थे। कुरान करीम की सूरह शारा की आयत नंबर 119 में वो करना आता है कि जो कि आपकी कौम के सरदारों ने आज से कहा मुलाज़मा कीजिए। तर्जुमा, इस कौम के सरदार बोले, अगर तुम तबलीग से बाज न आए तो जरूर सनगसार कर दिए जाएंगे। एक मरतबा नूह अलैहिस्सलाम पर पहले तो शदीद तशद्दुद किया गया, उसके बाद आपको किसी कपड़े में लपेट कर आपके घर के बाहर फेंक दिया। इन लोगों का ये ख्याल था कि इस तरह आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी, मगर आपकी हिफाजत अल्लाह करीम की ज़िम्मा थी। चुनांचे आप इस कपड़े बखैर और बरामद हुए और इसमें साबित तबलीग में मसरूफ़ अमल होंगे। एक मरतबा यूँ हुआ कि एक बुरा शख्स लाठी के सहारे चला जा रहा था, कम सुन बच्चा भी इसके हमरा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दूर से आता देखकर बूढ़े ने अपने साथी आने वाले बच्चे से कहा, ए मेरे बेटे, इस बूढ़े शख्स के जान में हर जिद मत फंसना, ये तुम्हें कहीं धोखा ना दे डाले।
बूढ़े की बात सुनकर नॉर्मल लड़के ने कहा, ए मेरे बाप, जरा मुझे अपनी लाठी तो दे दो। इस नॉर्मल लड़के ने वो लाठी लेकर आपको मारना शुरू की, जिससे आप लोलाहान हो गए। इस तरह आपकी कौम के अमाज आपको तंग करते रहते और आपकी हर बात को वो चुनाते और दूर से आता देखकर आवाज करते हैं। आप अपनी कौम को ताला के अजाब से उठाते और जिंदगी खुशखबरी देते हैं, मगर लोगों पर आपकी किसी बात का असर ही ना आता, बल्कि वो गुनाहों में और ज्यादा मगन हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए दुआ। 950 बरस का अर्सा एक तवील अर्सा होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तवील तरीन अर्सा अपनी कौम में रह कर इनके इस्लाम में शिरक किया, मगर महज चंद लोग ही ईमान की दौलत से सरफराज हो सके। जब आप इन्हें हसरा से समझा कर देख चुके कि ये तो किसी तरह भी रास्ते पर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपने अल्लाह ताला से रुजू किया। सूरह मुमिनून के आयत नंबर 26 में आता है कि तर्जुमा नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा। इस पर के उन्होंने हर तरह से मैं तकलीफ की। जबकि सूरह शरा के आयत नंबर 118 में आपने अल्लाह के हजूर ये दुआ की। तर्जुमा आपने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी तकलीफ की तो मुझ में इनमें मैं पूरा फैसला कर दे और मुझे और मेरे साथी को मुसलमानों की निजात अता फरमा दे। फिर जब आपकी कौम ने आपको दर्जा सताना शुरू कर दिया तो आपने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज किया। सूरह नूह के आयत नंबर 26-27 में आता है कि तर्जुमा नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, इस जमीन पर काफिरों में से कोई भी बसने वाला ना जिंदा छोड़ना। बेशक अगर तू इन्हें रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी औलाद होगी तो वो भी बदकार और बड़ी नाशुक्री होगी। यकीनन ये कोई खुशगवार दुआ ना थी। ये एक नबी जो अपनी कौम की इस्लाह के मबूस से हो, वो कोई अपनी कौम की बदबारी के लिए बददुआ करेगा। मगर ऐसा भी मुलाजमा कीजिए कि 950 मरतबे मबनी करने के बाद जब कौम ने इस नबी को झूठा ही कहा तो फिर नबी के लिए बददुआ ना करे तो क्या करेगा। फिर जब तक उन्होंने अपने पास आने वाले नबी को संगासार करने का इरादा कर लिया और बार बार आपकी धमकियां भी देने लगे, तो आपने अपनी इसी कौम के लिए आखिरकार बददुआ कर दी, जिसके लिए आप सदियों तक करते रहे थे। अब चौंके इन लोगों की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़िदा नबी रसूल थे। जब आपने अल्लाह करीम के हुज़ूर अपनी कौम की बदबारी के लिए बददुआ कर दी तो वो कबूल हुई और इस कौम के मुकदमे में तुम्हारी बर्बादी लिख दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तो बददुआ की, मगर मेरी कौम को तबाह कर, मगर अल्लाह करीम ने ये फैसला करना था इस कौम को तबाह किस तरह किया जाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह हूद के आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाया, तर्जुमा ए नूह और कश्ती बनाओ हमारे हुक्म से, जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात न करना, वो सब डुबो जाएंगे। कश्ती बनाने का हुक्म हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मिल गया तो ये भी फरमाया गया, अब इन पर अज़ाब का आत्मी फैसला हो चुका है। इनमें से किसी पर सिफारिश न की जाए, क्योंकि अज़ाब इन सब पर आएगा। यही वजह थी कि आपकी कौम तो थी ही, मगर आपके अपने घर में आपकी एक बीवी और एक बेटा भी काफिरों में से था। इस हुक्म में वो शामिल थे कि कहीं इनके लिए दुआ ना कर देना। कश्ती क्या प्यारी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये तो मालूम नहीं था कश्ती को किस तरह बनाना है। चाचा अल्लाह की हिमायत के कारण कश्ती का अगला हिस्सा मेरे के सर की तरह और दरमियानी हिस्सा पिंडे के पोटे की तरह और हिस्सा मुंह के दुम की तरह बनाया जाए, जबकि तलाब में दरवाजे बनाया जाए और मीखों से मजबूत करे। ये भी घुमाया गया कि हर तरफ तारकोल की लपकाई की जाए ताकि पानी अंदर ना आने पाए। कश्ती की लंबाई तकरीबन 450 फुट थी, चौड़ाई 75 फुट और ऊंचाई 45 फुट थी। इसको सागवान की लकड़ी से तैयार किया गया। ये कश्ती करीब 2 बरस में तैयार हुई थी। इसकी 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल में वहशी जानवर, दरिंदे, हशरात यानी कीड़े मकोड़े, दरमियानी मंजिल में फालतू जानवर और चौपाई वगैरह थे, और सबसे ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले ख़वातीन हज़रात थे और खाने पीने की अशिया थी। ये एक अजीम निशान कश्ती थी जिस पर वही लोग आपके साथ सवार जो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुके थे। इनमें से आपके 3 बेटे और इनकी सिवा थी और नूह अलैहिस्सलाम की एक बेटा शामिल थी। गोया ये घर के 8 अफराद हुआ। इनके अलावा 17 अफराद वो थे जो आप पर ईमान ला चुके थे। यूं कश्ती पर सवार होने वाले की तादाद 78 थी। इस कश्ती में जितने मर्द सवार थे इतनी औरतें भी सवार हुई। इस तरह जानवरों में भी नर मादा दोनों ही कश्ती में सवार हुए थे।
ہے۔